diabetic since 2009. Yes. And 2013 I was diagnosed as BP patient. In 2018, I think February, I went to some hospital. They did an angiogram, and they have put 3 stents. And they started giving me some tablets. Later I thought, I am using so many tablets. After somehow I could find one of your videos. After going through those videos and again going through some more videos, I understood that what doctor did with me was a fraud on me. So I decided to discontinue all the medicines. I discontinued and started DAP diet. So I am this diet only now. Okay. And now I discontinued all the tablets. I asked the doctor why you have given me that thinner also. What is the technology? You have put some stent. Anyway, blood was going smoothly from the stent before stent also. Now that when it is you have put stent, why blood has to be thinned again? So for this he had no answer. So I said, okay, when they don't have answer, I will find my answer through your videos. So I am on your medicines, this diet only. So, but later in 3rd month, I found that suddenly my sugar levels have increased. Of course, I contacted your office and they have given me, suggested me some other precautionary diet. So now my sugar levels are 184 and 179 only. Okay. That's good. Improvement is there. But my question is, how long I should be on this diet? Yeah. When I will be, can be before 2006. 2009 I was detected as diabetic. So 2008 I was not diabetic. So I want, when I will reach that level again. Here you have to be on diet, or for that matter, I have to be on diet for rest of the life. I will be. Yes. I will be. Yes. But some days if I discontinue, then Someday if you discontinue, let's say, First 4-5 days. to answer your question, anybody of this kind of history, if they are able to do it at least for 3 to 4 months sincerely, after that, even if they discontinue for a while, it will not make any difference. Okay. Right? So, number one. Number two, once or twice a week, if they are not able to follow it also, for example, you are traveling. Yeah. Even then it will not make any difference. Okay. Right? So, this means your body will adapt, your body is cured, but we want to remain cured. So, more or less you keep on following, but loosely. Even then it will work. Okay. Okay. Thank you. Thank you. सर गुड मॉर्निंग, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ. मैं आपका डीआईपी डाइट बिना माइक के बोल दीजिए. डीआईपी डाइट फॉलो करता हूँ, पर मुझे जो एक प्रॉब्लम है किडनी फंक्शन का. हाँ. किडनी फंक्शन थोड़ा इरेगुलेट है और क्रिएटिनिन बढ़े हुआ है. कितना? थोड़ा 6.5 ऐसा. हाँ. रहता है. हाँ. तो और पैर पे स्वेलिंग आ जाती है. हाँ. आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, पैर पे स्वेलिंग आ जाती है. तो डीआईपी डाइट फॉलो करने से ये कंट्रोल हो सकता है या नहीं? मैं आपको बताता हूँ. कुछ लोग बताते हैं जमीन के नीचे के फल खाने से फास्फेट बढ़ता है, ऐसा कुछ बताते हैं. इसी को और ठीक है, दो सवाल आपके ना. देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो सब्जी फल है जमीन के नीचे होंगे, जमीन के ऊपर होंगे, और तो कहीं हो नहीं सकता. राइट? तो कुछ लोगों ने बोला जमीन के नीचे वाला नहीं खाओ, तो कुछ लोगों ने जमीन के ऊपर वाला नहीं खाओ, देन यू आर लेफ्ट विद नथिंग. ठीक है ना? तो वो सब तो बेकार की बात है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, सूजन हो रही है. सूजन हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम. क्लियरली सूजन हो रही है. आपका क्रिएटिनिन 6 बताया आपने ना, तो किडनी की प्रॉब्लम है तो सूजन हो रही है. सूजन जब भी होगी इसका मतलब वाटर रिटेंशन हो रहा है. अब इस वाटर रिटेंशन को भगाएंगे कैसे? उसके लिए या तो डायरेटिक्स देंगे जिससे पानी बाहर बॉडी छोड़ेगा, लेकिन वो रोज देना पड़ेगा. वो कोई ठीक बात है नहीं. डायलिसिस पे जाएंगे, वो भी ठीक बात है नहीं. तो उसके लिए आप याद रखिए, अगर आप फॉर 21 डेज आपने DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच में प्लेट 2 को अगर माइनस कर पाए आप, ओनली डिनर यू आर हैविंग, एंड दैट यू कैन डू फॉर अबाउट 3 वीक्स. सो फर्स्ट 3 डेज आपकी सूजन चली जाएगी, और 3 वीक्स तक करेंगे तो सूजन वापस नहीं आएगी, और 3 वीक्स के बाद प्लेट 2 जो लंच में हमने माइनस कर दिया था उसको दोबारा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. राइट? सो दैट इज अ परमानेंट रिकवरी कमिंग आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ सूजन, है ना? स्वेलिंग की प्रॉब्लम से पूरी तरह बाहर आना. पहले बाहर आ गए कितने दिन में? 3-4 दिन में. लेकिन बाहर रहना भी तो है, इसलिए इसको हमने माइनस रखा प्लेट 2 को फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 3 वीक्स.
ताकि बॉडी और रिकवरी करना कर ले, देन अगेन यू कम बैक टू प्लेट 2 इन द लंच ऑल्सो, राइट। सो ऐसे ऐसे होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे आज वाले दिन में किडनी डाइट है, उसको भी आप देखिए और उस डाइट को करेंगे तो ये रिजल्ट थोड़ा और अच्छे आ जाएंगे। DIP diet minus plate 2 in lunch, that becomes the kidney diet, that becomes the diet to remove the swelling. बट और अच्छी तरह से करेंगे, कितने दिन तक करना है उसके लिए शाम को हम देखेंगे। आपने नंबर पे बताइएगा। आई सर गुड मॉर्निंग सर, मैं पंजाब पटियाला से हूँ। 2012 से स्टंटिंग हुई थी, 2 स्टंट पड़े थे जी। उसके लिए तो मेरी बीपी और जो इकोस्प्रिन चल रही है, हाँ, साथ में शुगर भी है, शुगर का भी मैं दवाई ले रहा हूँ और कभी कभी अस्थेमेटिक भी है, मेरा प्रॉब्लम आ जाती है। शुगर जो मेरी 150, 200, 140 रहती है दवाई के साथ, क्या मैं शुगर की दवाई छोड़ सकता हूँ आपकी DIP डाइट पर? शुगर कितना रहता है दवाई के साथ? 150, 200, 150 में मिनिमम 150 रहता है। और जो दवाई चल रही है वो आपने बता ही दिया है कैसे मिनिमाइज करनी है, वो आपके सेशन में देख लेंगे कैसी है। हाँ हाँ, वो चल रही है मेटाफॉर्मन जो भी है इसकी, और दूसरी जड़ी है इकोस्प्रिन चल रही है रात को, सिर्फ रात को लेता हूँ। आज शाम को जैसे मैंने अभी इनको बताया हार्ट डिजीज का डाइट है, वो डाइट आप लीजिए, राइट। वो डाइट लेंगे तो वो आपके ब्लड शुगर को भी नॉर्मल करेगा, और जैसे जैसे नॉर्मल करेगा तो ऑब्वियसली जो लोग मेडिसिन पे हैं, आप तो मेडिसिन पे ही हैं, जिस दिन आप डाइट लेना शुरू करेंगे फ्रॉम दैट डे यू कैन स्टॉप द मेडिसिन, नंबर 1। नंबर 2, आपने बताया जैसे 150 आपकी ब्लड शुगर रहती है दवाई के साथ, जो नया प्रोटोकॉल आया है कि अगर दवाई के साथ 160 से नीचे आ रहा है आपकी ब्लड शुगर, इसका मतलब दवाई के साथ अगर आपकी ब्लड शुगर 160 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत नीचे चला गया है, दवाई फटाफट छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो दैट इज द न्यू प्रोटोकॉल, मैंने बताया भी था पिछले साल का जो नया प्रोटोकॉल आया ना वो ये है। तो दवाई तो आपको छोड़ना ही है बिकॉज वो ज़्यादा ही नीचे आ गया, 150 को नीचे ही मान रहे हैं आप, दवाई के साथ 150, बिना दवाई के अगर 150 है 100 है इट इज ओके, राइट। तो दवाई की इन्फ्लुएंस से 150 इज लेस, तो दवाई तो एज इट इज छोड़नी है अगर हम या कम करना है, चाहे हम आप डाइट फॉलो करें या ना करें, लेकिन अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा है कि फिर सब कुछ ही दवाई छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, अगर मैं तब ना कवर कर पाऊँ इसलिए अभी बता रहा हूँ कि जो ब्लड प्रेशर है वो इस डाइट में करीब 3 से 7 दिन लगते हैं ब्लड प्रेशर को टेपर डाउन करने में, राइट। तो ब्लड प्रेशर का एक फॉर्मूला है, मैंने आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो वो फॉर्मूला आप याद रखिए, दैट इज 250, ये आपकी ब्लड प्रेशर होनी चाहिए, इससे कम 250 मतलब सिस्टोलिक ऊपर वाला एंड डायस्टोलिक नीचे वाला, ठीक है ना। मान लो ऊपर वाला 140 है, नीचे वाला 90 है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 230, इससे कम है ना, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। कैसे पता चलेगा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? ये और ये प्लस कर लिया, क्या इससे कम है तो ब्लड प्रेशर ठीक है। तो आप देखेंगे वो जब भी आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं इससे कम होना चाहिए। अभी तो कम होगा क्योंकि दवाई ले रहे हैं, 1 हफ्ते बाद दवाई छोड़िए, 2 दिन बाद चेक कीजिए, क्योंकि 2 दिन के अंदर दवाई का मैक्सिमम पार्ट बॉडी से निकल जाएगा। आपको याद है ना, मैं डे 1 में बताया था बॉडी में दवाई रहती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, है ना, रहती है ना थोड़ी, तो निकल जाने के बाद आप चेक करेंगे और तब भी रिजल्ट इससे कम आ रहा है, इसका मतलब छोड़ दिया तो तब भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह रहा है, तो ठीक है, ठीक किया छोड़ के। तो मतलब ये ब्लड प्रेशर वाले केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो डायबिटिक पेशेंट है वो जूस ले सकते हैं? हाँ आपने कहा कॉन्स्टिपेशन के लिए हाँ, कैसे ले सकते हैं बता रहा हूँ। डायबिटीज पेशेंट जूस ले सकते हैं, आंसर इज यस और नो, यस ले सकते हैं, पहली बात तो ये हो गई। अब कैसे ले सकते हैं? जैसे गन्ने का जूस ले सकते हैं, कोई पूछेगा, हाँ ले सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि अगर गन्ना खाते वक्त जितना टाइम आप लगा रहे थे ना, जूस पीते वक्त उतना टाइम ही लगाइए, ठीक है ना, तो जूस ले सकते हैं। हाँ। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं भी हैं तो वो भी जूस अगर आप फटाफट पी लेंगे पानी की तरह तो वो जूस का फायदा नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा। लेकिन जो ट्रैवलिंग स्पीड है बॉडी में फूड की, ये ट्रैवलिंग स्पीड कैसे काम करती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज के उसका पार्ट है।
सर मैं डायबिटिक हूँ 5-6 साल से। मैं पीजीआई चंडीगढ़ गई तो मेरी थोड़ी मतलब 10 समथिंग था लेवल, तो उस टाइम उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि सर मैं थोड़ा कंट्रोल कर लूँगी, मेरे को इंसुलिन पे मत डालो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो मेरे को दिमागी परेशानी हो गई कि ये डॉक्टर बोल रहा है, तो मैंने इंसुलिन स्टार्ट कर दी। फिर मैंने आपकी कैसेट्स देखनी शुरू कर दी, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैं आपको देखना शुरू कर दिया। मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी और मैंने मन में डिसीजन कर लिया कि मैं इंसुलिन छोड़ूंगी। मैंने बिना डॉक्टर के पूछे मैंने घर में इंसुलिन छोड़ दिया। इंसुलिन छोड़ने से मेरे को ये हुआ कि जब मैं इंसुलिन लेती थी तो मेरा शुगर लेवल जो था 60 आ जाता था। 60 आता तो मैं फिर घबरा जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने अब इंसुलिन छोड़ी हुई है। मेडिसिन मैं ओरल मेडिसिन ले रही हूँ, 2 टेबलेट्स, एक मॉर्निंग एक इवनिंग रात को मेरी। लेकिन शुगर मेरी अभी 2 पॉइंट्स, आज कल थी मेरी 204। और अब जैसे आप 9 बजे आए हो आप, मैं 9 बजे वॉशरूम जाके आई हूँ। इस टाइम भी मेरे को ऐसा है कि मेरे को फिर वॉशरूम जाना है। तो एक मेरे को ये होता है, दूसरा मेरे को ये फील होता है कि जैसे कई बार सिर में एकदम चक्कर सा आ जाता है और मैं ऐसे गिरने से लगती हूँ। एक बीपी भी है मेरे को, मैं थायराइड पेशेंट भी हूँ और साथ में मैंने हर्नियों का ऑपरेशन भी करवाया हुआ है। तो आप मेरे को ये बताइए कि मुझे कैसा करना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, देखिए कई सारे मल्टीपल प्रॉब्लम है आपकी, है ना। तो इसमें प्रिकॉशन, पहला प्रिकॉशन जो चक्करों से आपको बचाएगा, चक्कर आने से, जो आप बोल रहे हैं ना, वो ये है कि आपको हर घंटे, इफ नॉट हर घंटे, हर 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ चबाना है, खाना है। पेट खाली होने से पहले पेट में कुछ जाए, हर घंटे, हर 1.5। क्या 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 ले सकते हैं, उसका एक तरीका है कि अपने पर्स में या तो काजू, किशमिश, अंगूर, केला, जो भी चीज़ आप कैरी कर सकें, फल या नट्स या डेट्स खजूर, है ना, तो वो आप कैरी करें और वो खाते रहें। हर, जैसे लोग पान चबाते रहते हैं उसी तरह से, हाँ, कि हर 1 घंटे में आदत सी बना लिया आपने, चबाते रहेंगे। तो एक बात याद रखिए कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के पास शुगर, ब्रेन का जो एनर्जी का सोर्स है वो शुगर है। एनर्जी का सोर्स ब्रेन का शुगर है, बॉडी का भी शुगर है, लेकिन ब्रेन एनर्जी को, शुगर को स्टोर करने की ब्रेन के पास क्षमता नहीं है या जगह नहीं है, वो तो डायरेक्ट ब्लड से लेता है। तो आप शुगर पहुंचाते रहेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो ये चक्कर आने बंद हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी लोग इतने मल्टीपल दवाइयों पे रहेंगे, सारी दवाई जाके ना जाने बॉडी में क्या करती है, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। तो जब तक आप इस चक्रव्यूह में रहेंगे, थायराइड है, बीपी है, शुगर की मेडिसिन है, तो तब तक ये जो सिम्टम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, ये लगातार बनी रहेगी। तो इससे छुटकारा कैसे पाना है, मैंने थायराइड पे अभी भी बताया था, तो इसलिए थायराइड पे शाम को भी बताना है, इसलिए अब और नहीं बता रहा हूँ। सिमिलरली बीपी पे भी मैंने भी एक्सप्लेन किया था, बीपी का नंबर भी मैंने बताया। शुगर का नंबर मैं और बता देता हूँ, शुगर के लिए भी यही आंकड़ा है 250। खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करेंगे, अगर इससे नीचे आता है mg/डेसीलीटर, यानी कि आपकी शुगर नॉर्मल है। आपने बोला शुगर है 204, हाँ, लेकिन ये दवाई के साथ है ना। आप DIP डाइट को फॉलो कर ही रहे हैं, तो एक दिन दवाई को आधा लेके देखिए या छोड़ के देखिए, और फिर देखिए क्या तब भी इसके अंदर रहता है क्या, या इसके आसपास रहता है क्या। अगर तो आसपास रहता है तो दवाई लेने की जरूरत नहीं, और जैसे ही दवाई छूट जाएगा आपका, आपके जो डिस्कम्फर्ट्स हैं वो अपने आप कम होने लगेंगे, राइट। वो जो दिक्कतें हैं ना, जो अभी अभी आपने बोला, वो कम होने लगेंगे। अच्छा सर, ऐसा है कि जैसे मैंने आपकी कैसेट देखी कोलेस्ट्रॉल वाली, कि उसका कोई फायदा नहीं वो मेडिसिन लेने का, मैंने वो ऑटोमेटिकली आपके उससे कैसेट से छोड़ दी। अब मैं नहीं ले रही हूँ बिल्कुल बहुत भी। अच्छा है, पर मुझे कुछ उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही नहीं है। होगी। इसी तरह मैंने इकोप्रिम जो डॉक्टर देते थे, साथ में स्टेट सेट देते थे, बीच में ही वो मेडिसिन थी, तो मैंने वो छोड़ी हुई है। अब मेरे को उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो छोड़ी है तो तभी तो नहीं चक्कर आ रहे। नहीं। हाँ। ऐसा वो वहम होता है ना, मैं कि देखा ये कर लिया, होता है वहम ना, कोई देखा उसने खास दिया, वो काली बिल्ली निकल गई, है ना। हाँ, तो मतलब ये छोड़ देना कोई वो नहीं है, है। कोई कनेक्शन नहीं है उसका, कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसका कोई रोल ही नहीं है उसका। ओके, थैंक ठीक यू है सर। तो दवाई लेनी पड़ेगी, और एक तो दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई नहीं लेने तो क्या करें, डाइट को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, डाइट को कैसे चेंज करें, तो आज मैं इस पे शाम का उस गेम में बताऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
आपसे रूबरू बात करना मेरी किस्मत में मानता हूँ। थैंक यू। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी जब जब भी दुनिया में कुछ बुरे काम हो रहे हैं तो भगवान ने जो है अवतार लेके उतरा बोल के बोलते हैं। हमारे इस्लाम में भी थैंक यू। जब जब भी दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स आए अल्लाह मियाँ जो है एक पैगंबर को भेजा दुनिया साफ करने के लिए। तो इस तरीके से आज के दिन आज की दुनिया में जितना भी जो है पहल के है जो मेडिसिन जो दुनिया में जाके ख़राब कर रहे हैं उसको रिकवर करने के वास्ते आपको भेजा बोल के मैं मानता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मैं मेरी बहू यानी मेरे बड़े भाई की बहू जो है डीएम है, डॉक्टर है, और मैं जो है 2 साल से गोली खा रहा हूँ शुगर की। 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम खाना था। इंसिडेंटली 6 महीने पहले मैं आपका जो है कैसेट यूट्यूब में देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं फॉलो करा, ऑटोमेटिक कम हो गया उससे। मैं जो है आपका DIP डाइट फॉलो कर रहा हूँ 100%, मगर जो है मेरा ब्लड एकदम नॉर्मल है। खाने से पहले जो है 120-140 के बीच में रहता, फ्रूट्स खाने के बाद में 110-120 के बीच में आ जाता, खाने के बाद कम होता, उसके बाद फिर खाना खाने के बाद 1-2 घंटे तो 175-180 के बीच में रहता। तो आई एम ओके। और मैं ये जो है मेरे आसपास के लोगों को ख़ानदान में और सोसाइटी में बताया, कुछ लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो है लाइट ले रहे हैं। तो जब मैं आपका वीडियो देखा कि 31 तक के जो है रजिस्ट्रेशन करा लो बोलते करा लेके मैं यहाँ पर आया आपसे रूबरू मिलने के लिए, ये बड़ा सौभाग्य है मेरा। आप क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है 24-25 ईयर्स की, उसके मुंह पे जो है किलियाँ बहुत हो रहे हैं, पिंपल्स इतने बड़े हो रहे हैं कि अंदर से गड्ढा बन के फूट के उसके अंदर से जो है जैसा गड्ढे में से पीप निकलता वैसा निकल रहा, और मुंह पे पूरे होते हैं, और जिस्म पे भी जो है पूरे जो है धब्बे आ रहे हैं किलियों के। तो इसका इलाज कुछ है क्या आपके पास? और एक जो है किलॉइड्स जो होते हैं ना, फोड़ा लगा, कुछ जख्म हो गया, वुंडेड में किलाइट्स यू नो, तो वो कैसे कम होता? 1-2 चीज़ों में। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन का पहले आंसर देता हूँ। DIP डाइट प्लस लॉट ऑफ सनलाइट, धूप बहुत सारा, कितना बहुत सारा होता है 1 घंटा अगर डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा, और ऐसा मिलते हुए अगर 3 से 4 हफ्ते हो सकते हैं तो ये प्रॉब्लम जा सकती है। और तब भी नहीं जाती तो वो फिर वो गेम में है। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, नीम के पानी से नहाना साथ में, और साथ में इम्पॉर्टेंट है जो हम यूज़ करते हैं साबुन, ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी अगर यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों का स्किन सेंसिटिव है तो उनको वो केमिकल साबुन नहीं यूज़ करना है, फिर उनको साबुन घर पे बनाना है। घर पे बनाने की विधि वो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, आप फीडबैक फॉर्म में अगर लिख देंगे तो मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमें, मैंने बताया था आपको कि एलर्जी होती है, तो एलर्जी सिर्फ खाने से नहीं होती, कुछ चीज़ों को लगाने से भी होती है, ये तो आपको पता ही है। तो इस केस में देखना पड़ेगा कि किससे हो रही है। तो स्टार्ट करना है DIP डाइट से, असर नहीं हो रहा, साथ में सनलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में नीम का, और फाइनली साथ में केमिकल फ्री करने का। लेकिन यह है कि इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, इट विल टेक 1 मंथ टाइम, इट विल गो राइट। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका वुंड हीलिंग का था। किलाइट्स जो होता है ना, किलाइट्स, वो एक्चुअली क्या हो गया, मेरे मिसेस का पैर जल गया सर, वो एकदम क्या बोलते गैस का पाइप बस्ट होके पैर पे लग गया, एकदम जल गया। तो उसको जो है वो उसको रिकवर हो गया, वो पूरा किलाइड बन के इतना मोटा चमड़ा हो गया, मोटा किलाइड्स बन गया। वहाँ पे जो है खड़े के 1 घंटा काम करने तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, 1 घंटा खड़े के काम नहीं कर सकते, उसमें जलन होती रहती। तो उसको कम करने के लिए वो हैदराबाद में बहुत दवाखाने इधर उधर फिरे, तो कहीं भी जो है उसका इलाज नहीं हो सका। वो लोग जो है वो कुछ पट्टी दिए, वो बरने ये बने, तो भी दैट इज़ नॉट परमानेंट सोल्यूशन। तो उसको कुछ किलाइट्स कम करने के लिए कुछ उसको ऐसा ना कि अभी बात कर रहे थे पहले भी, जब भी कोई बॉडी के साथ एक्सीडेंट होता है तो डैमेज जो होता है दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम, ये तो हमें मानना ही है राइट। वो लॉन्ग टाइम मीन्स इट मे टेक 9 मंथ्स, इट मे टेक 1 ईयर टू रिकवर फ्रॉम दैट। कोई भी डैमेज होगा, हाथ टूट जाएगा, आपके स्पाइन की प्रॉब्लम बताया आपका, इस केस में ऐसे होता है। तो मेरा ये बोलना है इस केस के लिए, डोंट इंटरफेयर एनी मोर, पट्टी लगा के या कोई लोशन लगा के, डोंट इंटरफेयर एनी मोर, ट्राई टू कीप इट नियर द सनलाइट, ट्राई टू ईट DIP काइंड ऑफ डाइट, न्यूट्रिशन जाएगा, न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचेगा, लेट द इम्यूनिटी वर्क टू रिकवर। इम्यूनिटी थोड़ा तो सूख गया सर, थोड़ा सूख गया, वुंड है कंप्लीट कंप्लीट हो गया, चमड़ा आ गया, तो वो जो आ रहा किलाइड बन के आ गया, तो वो इट विल गो ऑन इट्स ओन, दैट इज ए पार्ट ऑफ द होल हीलिंग सिस्टम। ओके, तो उसको हम छेड़ना नहीं है, लेट इट गो ऑन इट्स ओन, तब तक हमें केयरफुल रहना है और डैमेज ना हो उसका ध्यान रखना है। दैट्स ऑल। थैंक यू सर।
डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ भगवान की सबसे बड़ी ग्रेस है कि उन्होंने मुझे आप तक पहुँचाया। आई एम डीपली थैंकफुल टू यू। मेरा कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है क्योंकि इन सब के प्रश्न से मेरे बहुत से प्रश्न आंसर हो रहे हैं। थैंक यू। आई पास ऑन द माइक। मेरा भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछले 10 सालों से हम ड्रगलेस थेरेपी पे काम कर रहे हैं, मंत्रा हीलिंग पर। अच्छा। और बहुत सारी सक्सेस केस मिले मंत्रा हीलिंग पर। हम भी डॉक्टर सब लोग पेशेंट से कहते हैं कि दवाइयों से थोड़ा दूर हो जाओ, तो मन में डाउट रहता है कहीं हम गलत तो नहीं करें, पर आपसे मिलकर बहुत मोटिवेशन मिला, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार आपको। नमस्कार। एक तो जब मैं कल यहाँ से गया था तो काफ़ी लोगों ने मुझसे एक तो चश्मे की एक्सरसाइज के लिए पूछा। मैंने कहा जी मैं आपको कितने लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँगा, अगर आपको टाइम मिले तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि चश्मा का नंबर कैसे उतरेगा। ठीक है, मेरा उतर गया, मैं खाली फैशन के लिए लगाता हूँ वैसे लगा लेता हूँ। अच्छा नहीं लगता, वाइफ कहती है अच्छे नहीं लगते बिना चश्मा लगाओ मैं भी यहाँ रखता हूँ। और दूसरा एक मैंने वो गोलियाँ बीपी की गोली छूट गई मिलकर, एक वो आपने ब्लड थिनर की गोली बताई थी वो भी छोड़ दी है मैंने। तो ब्लड थिनर का कहीं उसका चेक करवाना पड़ेगा या छोड़ दिए तो छोड़ दिए? नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं, ब्लड जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं साहब डीआईपी डाइट और उस पर मसूल रह रहा हूँ, बस मुझे वो इंसुलिन की प्रॉब्लम है, वो उसको कम करना चाहता हूँ। छोड़ दिया था बीच में इंसुलिन भी। हाँ, आपने लेकिन हाँ बताए बिल्कुल छोड़ दिया था। तो मैं बराबर में इधर उधर वो सब गोलियां, मेरे सीजीएचएस गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहा हूँ, रिटायर हुआ हूँ वहाँ से दूरदर्शन दिल्ली से, तो वो मुझे फ्री मिल जाता है वहाँ से। वो डॉक्टर को कहो ये हो गया तो वो एक के साथ दो। आपने वो एक टूल बताया था कि हाइपर की लोगे तो ब्लड आ जाएगा, ब्लड की लोगे तो कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, वो आपका एक देखा था मैंने मेथड उसके अंदर, तो वो दे देता हूँ ला करके लोगों के लिए। तो वो है उसके ब्लड थिनर के लिए कोई चेक कराने की जरूरत नहीं है? उसकी कोई चेक कराने की जरूरत है ना? ना 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 कुछ नहीं है, कहीं नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही दे दिया था आपने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही था। ओके ओके ओके, सो नाइस ऑफ यू। Yeah. Yes. Those who have asked. Yes. No, let's not take any more minute. Carry on. Hello, sir. Sir, I want to know about Down's phenomenon and sugar spike. Are they normal? If not normal, how to make it normal? And second is, if a person is diabetic and DIP diet, completely following the DIP diet, and if he is going to regularly to the gym and want to build his muscle and hard workout, so does this DIP diet is enough for him, or he should need some extra nutrition for the building of the muscle and Okay, I choose to answer your second question. Each one of them decide to ask one question. एक राउंड हो जाए ताकि पूरा, तो लेट मी आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, फिर टाइम मिलेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए, डीआईपी डाइट क्या करेगा आपके लिए, जो लोग स्पोर्ट्स में उनके लिए आसान होगा। जिस दिन शुरू किया, मान लो जो लोग अभी शुरू नहीं किए, तो जो लोग जिम ऑलरेडी जाते हैं तो उनको ये एग्जैक्टली पता होता है कि वो कितना लिफ्ट कर सकते हैं वेट, और उसके बाद कितने रेपिटेशन मार सकते हैं, उनको पता होता है। जो लोग क्योंकि वो रोज उसको मेजर करते हैं। एक महीने में अब क्या उससे ज़्यादा कर पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं, तो मोस्टली आप देखेंगे हमेशा वो ज़्यादा कर पाएंगे। एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, स्टेमिना बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। लेकिन अब आते हैं कि किसी को बॉडी बिल्ड करना है कि मसल्स ऐसे दिखने चाहिए, वो डीआईपी डाइट से नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये डाइट जो है बॉडी को लीन रखती है और स्ट्रेंथ देती है, लेकिन बॉडी अगर एक पर्टिकुलर इमेजिन कर रहे हैं कि वो ऐसा ही होना चाहिए, वो तो डीआईपी डाइट से नहीं होगा, राइट। क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, इसको कैसा बनना है वो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, वही डिसाइड करता है। बट एनीथिंग आर्टिफिशियल, देन यू हैव टू टेक समथिंग, जो लोग हार्मोनल लेते हैं और स्टीरॉयड लेते हैं, बट वो तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। मैंने कल बताया था, मैं आपको बता देता हूँ इस बैच में भी, जो लोग ऐसा करते हैं, आप देखिए बड़े बड़े नाम जो हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग के नाम में जाने जाते हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है या मोहम्मद अली थे, उनके आखिरी के 30-40 साल अगर उनकी निजी जिंदगी देखेंगे, वो इतने बीमार हैं, इतनी सर्जरी हो चुकी है। जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो सिर्फ दूर से दिखता है कि वो ठीक लग रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर वेरी वेरी सिक। मोहम्मद अली आपको पता है 40 साल उन्होंने कितनी सारी बीमारियों से, उनका आधा टाइम जिंदगी का बीमारी रहे वो। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें, और लेट द बॉडी डिसाइड। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टेमिना बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ मसल्स वैसे दिखेंगे नहीं, मेरे तो नहीं दिख रहे, तो शायद आपके भी नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट सर, under your guidance we are dealing under your